Assalamu alaikum. This is lesson number 3 with the topic of run-ons and comma supplies. Run-on basically a sentence that are connected without correct punctuation. And comma supplies is where two sentences are joined with only a comma. These sentences are called comma supplies, and the sentences that are connected without correct punctuation, these sentences are called run-on sentences. First of all, we are going to discuss the run-ons. What are the run-on? There are two errors people commonly make when joined independent clause to form a sentence. The first type of error is called run-on. Run-on, two independent clause are combined without proper punctuation. As I always say that कि जब आप incorrect punctuation use करते हैं तो it means that you are doing the run-on. There's an example of run-on. Bank offered many helpful services. You should check them out. अब देखें यहाँ पर कोई कॉमा मीन्स दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया गया है पर देयर इज नो पंक्चुएशन। जब आप इसको सेंटेंस को करेक्ट करेंगे तो आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस को आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों सेंटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। इन द सेकंड, अगर आप इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करते हैं, यू कैन ऐड सो विथ कॉमा। और अगर आप इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर बिकॉज बैंक ऑफर मैनी सर्विसेज यू शुड चेक देम आउट। तो ये जो है ये इसका देर आर थ्री करेक्ट पॉसिबल देर आर थ्री possible corrections of this run on. Here there are two or more run-on examples. You can see that and can get understand these. And our second topic is comma supplies. As the second type of error people do sometimes when joining independent clause is called a comma supplies. As you know that when we join compound sentences, we use comma. When we join complex sentences, we use comma. So first of all, look, uh, and is playing the role of coordinating conjunction here, and comma will be there. ओके और अगर हम इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस में लेके जाते हैं तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में डेफिनेटली अगर अगर हमारी जो कंजक्शन है बिफोर सेंटेंस या एट द एंड ऑफ सेंटेंस आएगी तो हम दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ। लेकिन अगर जो है हमारी कंजक्शन सेंटर ऑफ द सेंटेंस आएगी देन देयर विल बी नो यूज ऑफ कॉमा। That is all about comma supplies. And in the practice number 3, there's sentences, and you will be rewrite these sentences with the by removing the run-ons and editing with the comma supplies. और यहाँ पर हमारे पास एक पैसेज भी है जिसको आपने स्टडी करना है और अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का आंसर देना है। और इसके साथ ही हम मूव कर जाएंगे लेसन नंबर 4 के ऊपर। लेकिन ये लेसन नंबर 4 जो है इसमें हम स्टडी करेंगे सबऑर्डिनेटिंग आइडियाज। यू नो व्हाट गाइस, सबऑर्डिनेटिंग आइडियाज क्या होते हैं? use basically to express your ideas you need the combination of sentence। आप जो सेंटेंस यूज करते हैं एक पैराग्राफ लिखने के लिए, व्हाट टाइप ऑफ दी सेंटेंस और जो है इन सेंटेंसेस का क्या फ्लो होना चाहिए और किस तरह आपने इन सेंटेंसेस को बाय द वे ऑफ वैरायटी यूज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ सजेशन है और इन सजेशंस के थ्रू आपको ये चीज रियलाइज करवाई जा रही है हाउ टू सबऑर्डिनेट योर आइडियाज थ्रू द सेंटेंसेस।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके जो आइडियाज हैं, ट्राई टू यूज द स्मूथ following sentences rather than short choppy sentences. First and the second recommendation is forms compound and complex sentences from short sentences. आपके पास अगर short sentences हैं तो try to convert these short sentences into compound and complex sentences. Combine two predicate to compound a make compound predicate, or combine two subjects to make a compound subject. We can get these statement by the example very well. तो इसको हम एट द एंड ऑफ लेसन स्टडी करेंगे. सबसे पहले तो आपको शॉर्ट एंड चॉपी सेंटेंसेस के बारे में बता देते हैं, क्योंकि शॉर्ट एंड चॉपी सेंटेंसेस हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं. लाइक ये देखें, कार्ला रैन फॉर द बस, शी मिस्ड इट. डेफिनेटली आप इसको जो है इस तरह से भी यूज कर सकते हैं. इसको सिंगल सेंटेंस में, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. इफ टू सेंटेंस हैव अ सेम सब्जेक्ट, अगर कहीं भी आपके पास सब्जेक्ट सेम है, दो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट सेम है, यू कैन कंबाइन देम टू फ्रॉम वन sentence with the compound predicate, and predicate includes the verb plus anything else that not part of the subject. यहाँ पर देखें, Carla sat on the bench. She looked at her watch. Carla, जब आप इसको कंपाउंड प्रेडिकेट में करेंगे, Carla sat on the bench and looked at her watch. यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट था ना वो सेम था, यहाँ पर भी कारला थी, यहाँ पर भी वही है. अब आपने इन दोनों को कंपाउंड कर दिया है और आपने बाकी पूरे सेंटेंस को जो है एक ही फ्लो में ले आना है, और उसको आपने एंड या जो भी आप पॉसिबल कंजक्शन यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं. ठीक है. सो अलीशेर, आपको यहाँ तक समझ आई है? यस मैम, आ गई है। ओके. और एहतशाम, मुनीब. यस. ओके यस जी. मैम। अगर आपके सेंटेंस जो है रिपीट हो रहा है, लाइक कार्ला मिस द बस, देव मिस द बस टू, तो आप इसको सिंगल में कर आप इसका सब्जेक्ट भी कंपाउंड कर सकते हैं और इसका वर्ब भी, मतलब रिमेनिंग सेंटेंस भी कंपाउंड कर सकते हैं, लाइक कार्ला एंड देव मिस द बस. और अगर आप यहाँ पर जो है आप सेंटेंस आपके पास बहुत ज्यादा डिटेल में है तो आप डिटेल को शॉर्ट भी कर सकते हैं. कार्ला मिस द बस, इट वाज 7:45, बस शी वाज ऑन हर वे टू वर्क. आप इसको सिंपल डिटेल में कर दें, मीन्स इसको शॉर्ट कर दें, नथिंग नीड टू डिटेल मोर एंड मोर. और ये सेम रेपिटेशन की एग्जांपल्स हैं जो हमने ऊपर प्रैक्टिस की है, और कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट को अगेन हम यहाँ पर कर सकते हैं. और ये रही इसकी प्रैक्टिस. इसमें आपने अगेन जो है रीराइट करना है अपने क्वेश्चंस को, सॉरी sentences को, and then you have to read this passage to solve these 3 question answers. So please try to solve the exercise must be, because it will be help you to get more. Lesson number 5. This is modify ideas. To modify the ideas, we need to know what are modifiers. Modifiers होते क्या है? Modifiers basically words or phrase होते हैं to add descriptive detail. जब आप किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना चाहें, किसी भी चीज की डिस्क्रिप्शन देना चाहें, किसी वर्ड की या किसी फ्रेज की, दैट इज कॉल्ड मॉडिफायर. लाइक our friend, our good friend, here is good is the modifier. ठीक है. टीना हेल्प अस while we were moving. कहाँ जा रहे थे? वॉचिंग our baby in their home. ठीक है. मीन्स ये एक क्लॉज है, उसको मीन्स दे वी वर मूविंग, वेयर दे वर मूविंग. तो आप इस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं. इट्स मीन्स दैट यू आर रेडिंग द मॉडिफायर. डू यू गेट द मॉडिफायर, स्टूडेंट?
एहतेशाम। नो मैम, जो दोबारा समझाइएगा। मैम समझ नहीं आई, क्या कहा आपने? डू यू नो अबाउट द एडवर्ब और एडजेक्टिव? मैम बचपन में किया था, याद नहीं है अच्छी तरह। बिल्कुल। हाँ, अब आप बड़े हो गए हैं। मुझे इधर लगता है अभी भी आपका बचपन ही चल रहा है। खैर, चले आपको बताते हैं कि किसी भी वर्ड और किसी भी क्लॉज की, मतलब किसी भी, जब आप किसी भी चीज की डिटेल सेंटेंस के अंदर ऐड कर देते हैं ना, इट्स मींस दैट यू आर यूजिंग मॉडिफायर। लाइक ये देखिए, सिंपल वर्ड है, ओवर फ्रेंड। ठीक है, ओवर फ्रेंड्स। अगर आप इसको कर देते हैं ओवर गुड फ्रेंड्स, तो आपने जो गुड वर्ड यूज किए ना, ये मॉडिफायर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वी रियलाइज द वेदर वुड नॉट कोऑपरेट। ये एक सिंपल सेंटेंस है। आप इसमें जितनी भी डिटेल इस सेंटेंस में एडिशनली ऐड करेंगे ना, वो क्या होगी? वो मॉडिफायर होगी। लाइक स्वेटिंग प्रोफ्यूजली एट 9 AM। सुबह 9 बजे भाई बहुत पसीना आ रहा था। वी रियलाइज द वेदर वुड बी अनकोऑपरेटिवली हॉट। अब आपने इस सेंटेंस को डिटेल में करने के लिए जितने भी वर्ड्स या क्लॉज ऐड किए हैं, वो क्या है? मॉडिफायर्स हैं। यहाँ पर आपने पूरा क्लॉज ऐड किया है, स्वेटिंग प्रोफ्यूजली एट 9 AM, पूरा क्लॉज ऐड किया है आपने, तो ये मॉडिफायर है। यहाँ पर आपने वुड नॉट कॉपरेट, आपने कॉपरेट को कॉपरेटिवली कर दिया और उसके साथ हॉट भी कर दिया। अनकॉपरेट तो कोल्ड वेदर भी हो सकता है ना, आप उसको यहाँ पर कोल्ड भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपने स्वेटिंग यूज किया, तो स्वेटिंग तो हॉट में होती है, तो दैट्स वाई यहाँ पर आप हॉट यूज कर रहे हो। तो जितना भी आप एडिशनल डिटेल या किसी चीज की डिस्क्रिप्शन, उसको ज्यादा डिटेल में बताने के लिए जब कोई वर्ड या सेंटेंस ऐड करते हैं, तो उसको मॉडिफायर कहते हैं। नाउ डू यू गेट गाइस? यस। ओके, दैट्स गुड। तो जनाब, मॉडिफायर की एक टाइप भी होती है जिसको डेंगलिंग मॉडिफायर भी कहते हैं या डेंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं। तो ये डेंगलिंग मॉडिफायर एक वर्ड या फ्रेज होता है एट द बिगनिंग, जब आप किसी सब्जेक्ट, जब आपको आपका सब्जेक्ट क्लियर ना हो, तो आप सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए सेंटेंस के स्टार्ट में या एंड पे, जब आप सिर्फ सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए आप जब कोई मॉडिफायर ऐड करते हैं, तो उसको डेंगलिंग मॉडिफायर बोलते हैं। लाइक यहाँ पर देखिए, ड्राइविंग द ट्रक, वन ऑफ बॉक्सेस फेल आउट। अब देखिए यहाँ पर हमें सब्जेक्ट क्लियर ही नहीं है, कौन ड्राइव कर रहा था, तो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया एज वी वर ड्राइविंग द ट्रक। जैसा कि आपने यहाँ पर सब्जेक्ट को जब क्लियर करना है, इट्स मींस दैट यू आर यूजिंग द डेंगलिंग मॉडिफायर। लाइक पार्किंग इन अ टाउ जोन मींस, पार्किंग इन अ टाउ जोन, हु वाज पार्किंग। तो जब आप यहाँ पर कोई सब्जेक्ट ऐड करेंगे, इट्स मींस दैट दैट इज डेंगलिंग मॉडिफायर। एम आई राइट? यस मैम। मैम मुझे थोड़ी थोड़ी फील आ रही है कि ये उर्दू में जैसे इसम नकरा, इसम मारफा वगैरह, ये वही चीजें हैं शायद। नहीं, इसम नकरा वो कुछ और है? वो नाउन और प्रोनाउन है। ओके मैम। ये और एक और मॉडिफायर का यहाँ पे हम एक और टाइप स्टडी करने जा रहे हैं, वो है मिसप्लेस मॉडिफायर। मिसप्लेस मॉडिफायर में क्या होता है कि मिसप्लेस मॉडिफायर में मॉडिफायर होता है, लेकिन वो गलत जगह पर यूज हुआ होता है। ठीक है, वो उसकी वो जगह नहीं होती। लाइक ये देखो, द मूविंग वैन वॉज जस्ट लार्ज इनफ दैट वी रेंटेड। द मूविंग वैन वॉज जस्ट लार्ज इनफ दैट वी रेंटेड। अब यहाँ पे क्या, किस चीज को रेंट किया हुआ था? वैन को ना। तो आपने वैन के साथ लिखना था दैट वी रेंटेड, आप एंड पे जाके आप लिख देंगे, तो इट्स मीन्स दैट मिसप्लेस्ड, मॉडिफायर को मिसप्लेस किया गया है। तो मॉडिफायर को मिसप्लेस नहीं करना। आपने वैन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसकी डिस्क्रिप्शन वैन के साथ होनी चाहिए।
तो लाइक यहाँ पर ये देखें, we hoisted and lugged all the furniture up to flight of stairs, planting heavily. अब आपने प्लांट किस चीज को प्लांट किया है? मिस पेंटिंग हैवी लिखा है। सॉरी, पेंटिंग हेवीली। मैं वही कह रही हूँ कि यार ये फर्नीचर को कहाँ पे प्लांट कर रहा है, ये क्या कह रहा है। सॉरी, मैंने उसको नहीं देखा है। पेंटिंग हेवीली, तो आपने यहाँ पर उसको मींस मॉडिफायर को उसको एग्जैक्ट प्लेस पे जब आप करेंगे तो वो आपका मिस प्लेस मॉडिफायर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्रैक्टिस नंबर 5 में सेम एज कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आपने रीराइट करना है। यहाँ पर मॉडिफायर मिसप्लेस्ड है, आपने उनको करेक्ट करना है। और हाँ जी, यहाँ पर डेंगिंग मॉडिफायर भी हैं जिनको आपने करेक्ट करना है। और इस पैसेज के साथ ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को भी सॉल्व करना है। और आज का हमारा जो लास्ट लेसन है पैरेलल स्ट्रक्चर, ये बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है क्योंकि इसमें हम लोग नॉर्मली जब कोई सेंटेंस में किसी एक चीज के बारे में मींस बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में सीरीज वाइज बात कर रहे होते हैं तो हम अपना स्ट्रक्चर जो है वो लूज कर जाते हैं। लाइक यहाँ पर देखें, जिम वांट्स टू ईट लेस, एक्सरसाइज मोर एंड बी गेटिंग मोर स्लीप। आपने यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर आपने wants to eat less, exercise more and be getting, यहाँ पर आप प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर आप ने प्रेजेंट पार्टिसिपल में चले गए हैं, यानी यहाँ पर आपने कॉन्टिन्यूस यूज कर दिया है। तो आपने यहाँ पर भी प्रेजेंट में ही रहना है। लाइक यहाँ पर देखें, वॉकिंग, स्विमिंग एंड गुड एरोबिक, वॉकिंग और स्विम। अगर यहाँ पर वॉकिंग है तो अब यहाँ पर स्विम है। सिंपल बात है कि आपके पास जो पहला वर्ड होगा आपने बाकी सारे स्ट्रक्चर को एज वेल एज फॉलो करना है। लाइक यहाँ पर ऑन बस स्ट्रीट, नियर ट्रैफिक जैम, इन पोल्यूटेड एरियाज। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सॉरी, प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज की, यहाँ पर यूज की, फिर यहाँ पर यूज नहीं की, तो यहाँ पर भी आपने प्रेपोजिशन को ऐड करना है। यहाँ पर आपने द जिम लिखा, द स्वीट पेंट एंड द शर्ट। यहाँ पर द जिम था, इसके साथ द ऐड नहीं किया, यहाँ पर द ऐड करना है। सो सिंपल थिंग कि आपका जो फर्स्ट वर्ड का या फर्स्ट वर्ब का जो स्ट्रक्चर होगा बाकी पूरे सेंटेंस में या पूरी सीरीज में सेम स्ट्रक्चर चलेगा। और ये रही इसकी एक्सरसाइज। सो दैट टाइम इज अप एंड सेशन इज गोइंग टू क्लोज। दैट्स व्हाई थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप दैट कि आपको पूरा जो है लेसन आपने आज का पूरा सेशन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। एम आई राइट स्टूडेंट? यस मैम। यस मैम। थैंक यू।